دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز، جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیوں نماز، دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجلسوں کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کے رسالے ثواب بڑھانے کے نسخے عنوان نمبر 41/1 علم دین قرآن مبین پڑھانے کی نیتوں میں سے تبدیلی اور تصرف کے ساتھ کچھ الفاظ ادا کرتا ہوں، آپ بھی حسب حال نیتیں فرما لیں۔ رضا الہی عز و جل پانے کے لیے شریک رہوں گا، تعظیم علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو علماء اہل سنت سے سمجھ لوں گا، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کروں گا، غیر مہذب فقرے بولنے اور ہر طرح کی بد اخلاقی سے بچوں گا، بعض فرائض علوم بیان کیے جائیں گے انہیں سیکھوں گا، صحیح مسئلہ سمجھ گیا تو دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا، گھر والوں کی بھی اصلاح کا سامان کروں گا، انہیں بھی سکھاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ قومیں تک تو ہو چکا تھا ہمارا، اور سجدے کی بھی ترکیب ہم نے بیان کر دی تھی۔ اسلامی بہنیں سمٹ کر سجدہ کریں، پیٹ رانوں سے، ران پنڈلیوں سے، پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ آئیے اس کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں۔ اب منی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح 2 سجدے کرنے، پہلے گھٹنے رکھیں گے، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں ہوں اور دونوں ہاتھ کے بیچ میں چہرہ رکھیں۔ کہ اسلامی بہنیں، عورتیں سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، ران پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں۔ سجدے اور قاعدے یعنی التحیات دونوں میں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں۔ قاعدے میں الٹی سرین پر بیٹھیں اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں۔ جلسے کے مدنی پھول سماعت فرما دیجئے۔ نمبر 1، تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں آنا۔ نمبر 2، پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ گھٹنے اٹھانے کا مطلب پورے گھٹنے نہیں اٹھانا، جلسے کے اندر گھٹنے موو ہوتے ہیں آپ کے۔ نمبر 3، سیدھا قدم کھڑا کر کر الٹا بچھا کر اس پر بیٹھنا۔ نمبر 4، سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہونا۔ 5، دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ 6، گود میں نظر کرنا۔ 7، اللہم اغفر لی کہنا۔ اب سجدے میں جائیے۔ اب آپ سجدے سے اٹھیں گے، سب سے پہلے آپ نے تکبیر کہتے ہوئے جلسے میں آنا ہے۔ تکبیر کا وہی انداز ہوگا کہ آپ لفظ اللہ کی الف کہیں گے اور اکبر کی را پر بیٹھ جائیں گے۔ پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے اٹھانا۔ مدینہ اللہ اکبر۔ جی، اس موقع پر مشورہ یہی ہے کہ تکبیر کو لمبا نہ کیا جائے۔ تکبیر کو اگر آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کی موومنٹ بھی آہستہ ہوگی۔ اپنی موومنٹ اور تکبیر کو برابر کیجئے۔ سیدھا قدم کھڑا کر کر، جیسے ان کا سیدھا قدم کھڑا ہے،
उल्टा बिछाकर इस पर बैठे, ये जिस अंदाज से बैठे हुए हैं, सीधा कदम खड़ा करना है और उल्टा बिछाकर इस पर बैठना है। सीधे पांव की उंगलियां किबला रुख होना, ये जैसे सीधा पांव है और इसकी ये उंगलियां हैं और ये किबले की तरफ है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। अब इनके आगे की पोजीशन देखिए, दोनों हाथ रानों पर रखना, गोद पर नजर रखना। अब ये कहेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, कहिए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। तादील अरकान वाजिब है कि इस मौके पर बैठना इनके लिए वाजिब है कि ये रुके, यानी इस जगह पर इनको ठहरना वाजिब है। एक तस्बीह की कदर मिकदार इनको ठहरना वाजिब है। जब ये सुन्नत के मुताबिक जलसे में आएंगे तकबीर कहते हुए और मुस्तहब पर अमल करते हुए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कह लेंगे, इनका वाजिब अदा हो जाएगा। इस्लामी बहनों के मदनी फूल, दोनों पांव सीधी जानिब निकालना। नंबर 2, उल्टी सुरीन पर बैठना। नंबर 3, सीधा हाथ सीधी रान और उल्टा हाथ उल्टी रान के निचले हिस्से पर रखना। आइए इसका अमली तरीका देखते हैं। अल्लाह पर कहकर जलसे में बैठी हैं भी, और ये दोनों रानों के बीच में हथेलियां रखेंगी और इस दौरान अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली पढ़ लें तो बेहतर है। इसमें कम से कम एक सुभान अल्लाह कहने जितनी मिक़दार बैठना वाजिब है और अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली कहना मुस्तहब कार सवाब। न पढ़े अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली तो कोई गुनाह नहीं। इस्लामी बहन जो रानों के बीच में अपने हाथ रखेगी जलसे में, दोनों पांव जो है ये सीधी तरफ निकालेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब हम दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, इसके मदनी फूल समाअत फरमाइए। नंबर 1, पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होना। नंबर 2, उल्टी तरफ जोर देकर खड़े होना। 3, तकबीर उसी अंदाज से कहना। अब तक जो अंदाज हम बार बार तकबीर का बता रहे हैं वो वही है। अब तक हमें याद हो जाना चाहिए कि हमारी इब्तिदा लफ्ज अल्लाह के अलिफ से होगी और अकबर की राह पर हम दूसरी स्टेप में मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये चीज हर जगह पूरी नमाज में आपके काम आएगी। पंजों के बल इन्होंने खड़े होना है, घुटनों पे हाथ रखना है, उल्टी तरफ जोर देना है। जोर का मतलब ढलान नहीं है, जोर का मतलब ये है कि जो जोर आप एक पैर पे जोर दीजिए, जब आप दे रहे होंगे तो कुछ पहला सेकंड तो होगा जिसपे आपने जोर देना शुरू किया होगा, तो जिस पहले सेकंड पे आपने जोर देना शुरू किया उसमें सिर्फ वो पैर जमेगा और दूसरा पैर लूज होगा। पहला स्टेप आपका पंजों के बल घुटनों पर हाथ रखकर खड़े होंगे, उल्टी तरफ आपने जोर देना है। तकबीर आपने इस तरह कहनी है कि आप कादा में हैं इस वक्त, आप कादा से या सजदे से लफ्ज अल्लाह की अलिफ कहते हुए अकबर की राह पर खड़े हो जाएंगे। इस अंदाज से आप तकबीर कहेंगे। मदीना अल्लाह अकबर। ये आप हमेशा याद रखें, लफ्ज अकबर में आपको कौन सी पोजीशन, यानी अगर आप इस मकाम पर इतनी कमर खम रह गई है, लफ्ज अकबर कहेंगे सीधे हो जाएंगे, तो ये मश्क से आपको आ जाएगा और फिर आप बिल्कुल नेट तकबीर के साथ अपने इंतकालात करने वाले बन जाएंगे। अब ये 3 बातें तो हो गई दूसरी रकात के लिए उठने के मदनी फूल में। चौथा मदनी फूल ये है कादा अखीरा तक बकिया नमाज मुकम्मल करना। अब अगर ये सजदे से उठे हैं पहली रकत के लिए और दूसरी रकत भी पूरी करेंगे, तीसरी चौथी सबकी तरकीब आपको बयान कर दी। अलबत्ता कादा ऊला अगर नफल नमाज में है और कादा ऊला अगर सुन्नत कबलिजा में है, उसके मसाइल अलग हैं जो पहले बयान किए जा चुके हैं। इस्लामी बहनें भी इसी अंदाज से खड़ी होंगी और अपनी नमाज पूरी करेंगी। अब आप फर्ज कीजिए कादा अखीरा तक पहुंच गए। इसमें हम कादा ऊला के भी कुछ मदनी फूल बताएंगे और कादा अखीरा के भी कुछ मदनी फूल बयान किए जाएंगे। नंबर 1, जलसे की तरह बैठना। नंबर 2, उल्टा पांव बिछाकर सीधी सुरीन पर बैठना। नंबर 3, सीधा कदम खड़ा कर उसकी उंगलियां किबला रुख करना। नंबर 4,
सीधा हाथ सीधी और उल्टा हाथ उल्टी रान पर रखना। नंबर 5, उंगलियां नॉर्मल और घुटनों के पास रखना। नंबर 6, गोद पर नजर रखना। नंबर 7, शहादत का इशारा करना। नंबर 8, ला से पहले छुंगली और पास वाली को बंद करना। 9, अंगूठे और बीच की उंगली का हल्का बनाना। 10, ला पर कलमे की उंगली उठाना। 11, इल्ला पर गिराना और सब उंगलियां सीधी करना। 12, कायदा अखीरा में इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना। 13, फिर दुआ पढ़ना। अब आप बैठे, देखिए बहुत मदनी पुल लिखने में बहुत ज्यादा होते हैं और जब आप अमली तौर पर आएंगे तो ये सिमट जाएंगे। आपने नॉर्मली जलसे की तरह बैठना है। जलसे में किस तरह बैठते हैं? नंबर 1, जलसे की तरह बैठना। नंबर 2, उल्टा पांव बिछाकर सीधी सुरीन पर बैठना, जिस तरह ये कादा में बैठे थे। फिर ये देखिए, सीधा हाथ सीधी और उल्टा हाथ उल्टी रान पर। ये देखिए, हाथ इनके दिखाइए, ये भी उसी अंदाज से जिस तरह जलसे में। उंगलियां नॉर्मल और घुटनों के पास रखना, ये भी जलसे का अंदाज है। गोद पर नजर रखना, दिखाइए भाई इनकी नजर कहां है, ये गोद पर है। तो ये बिल्कुल आपने अगर जलसे का अंदाज रखा तो ये आपके 6 मदनी पुल पूरे हो गए। अब आ गया शहादत का इशारा। तो ये जो है अशहदु अन ला, ये ला जो आ रही है, इस ला से पहले एक काम करना है, ला पर दूसरा काम करना है, ला के बाद इल्ला पर तीसरा काम करना है। ला इलाहा इल्ला, ला से पहले एक काम, ला पर दूसरा काम और इल्ला पर तीसरा काम। क्या करना है आपने? ला से पहले छुंगली और पास वाली उंगली को बंद करना। अशहदु अन, अन पर आपकी उंगली बंद होगी। कौन सी वाली? छुंगली और पास वाली को बंद करें। छुंगली और पास वाली ये 2 उंगलियां हैं, ये बंद कर दी इन्होंने। अब 3 उंगलियां इनकी यहां पर रह गई। और अंगूठे और शहादत की उंगली का हल्का बनाना। ये बीच की उंगली है, ये बंद हुई, अंगूठा और बीच की उंगली बंद हुई, और ये शहादत की उंगली के साथ इसका यूं हल्का बनेगा। ला पर कलमे की उंगली उठाना। अब ये ला आया तो ये उठ गई। ला से पहले आपने दोनों उंगलियां बंद कर ली, हल्का बना लिया, और ला पर आपने उंगली उठाई और इल्ला पर गिरा दी। गिराए और उंगलियां खोल दे। इस अंदाज से ये तरकीब होगी। इल्ला पर गिराना है और सब उंगलियां सीधी करना है। अब आप शहादत बहुत आराम आराम से कलमा शहादत भी पढ़े, अत्तहियात पढ़ते भी रहिए और ये तरकीब बना लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए और रुकेंगे आप, हर स्टेप पर रोक रहे होंगे, अपनी आवाज ब्रेक लगाएंगे जी। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब बिल्कुल तेजी से कह दे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसी अंदाज से आपने नमाज के अंदर करना है। फिर कादा अखीरा में इसके बाद दुरूद शरीफ और दुआ, और कादा उला जहां जहां दुरूद पाक पढ़ना होता है वहां वहां पढ़ना है। इस्लामी बहनों के मदनी फूल, ये जलसे की तरह दोनों पांव सीधी जानिब निकालें। नंबर 2, उल्टी सुनीन पर बैठना। नंबर 3, सीधा हाथ सीधी रान और उल्टा हाथ उल्टी के नीचे रखना। आइए इसका अमली तरीका देखते हैं। और इसमें अत्तहियात पढ़ना है, और जब अत्तहियात पढ़ते हुए कलमे शहादत पर पहुंचे, अशहदु अल जब कहने लगे तो अंगूठा और बीच की उंगली का हल्का बना लें और छोटी उंगली और उसकी बराबर वाली उंगली हथेली से मिला दें, और ला पर उंगली सीधी उठाएं और इल्ला पे गिरा दें।
तहियात पढ़ते हुए गोद में नजर रखें। तहियात के बाद अगर ये कादा अखीरा है तो दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे, दुआ भी पढ़ेंगे और दोनों तरफ सलाम फेरेंगे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सलाम फेरते वक्त के मदनी फूल। नंबर 1, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हुए सलाम। नंबर 2, पहले सीधी फिर उल्टी तरफ। नंबर 3, हर तरफ फिरिश्तों वगैरह की नियत। ये मुनफरिद हैं, इनके लिए यही मदनी फूल है। अकेले पढ़ रहे हैं, जो इमाम के साथ पढ़ रहे हैं तो वो इमाम की और सारे फिरिश्तों की, जबकि सीधी तरफ इमाम है तो आपने सीधी तरफ फेरा तो फिर उसके मुताबिक, उल्टी तरफ है तो उल्टी तरफ के हवाले से, बीच में हो तो उसकी तफसील लिखी है नमाज के अहकाम में उसके मुताबिक। नंबर 4, पहले सीधे फिर उल्टे कंधे की तरफ निगाह रखना। तो 4 मदनी फूलों पर आप अमल करेंगे। इस्लामी बहनों का सलाम आपने देख लिया है, इनका भी इसी तरह सलाम है। सलाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहते हुए सलाम फेरे सीधी तरफ फिर उल्टी तरफ। नीयत दोनों तरफ के फिरिश्तों की करें कि आप इस वक्त अकेले हैं, और सीधे कंधे की तरफ देखते हैं, उल्टे कंधे की तरफ, यानी आप इतना एंगल सर इतना पीछे तक ले आए कि आपका कंधा नजर आए। अमीर अहले सुन्नत वक्तन फवक्तन इस चीज की तवज्जो दिलाते हैं कि नजर कंधों पर नहीं होती, तो इसका पूरा सही अंदाज से तरकीब बनानी चाहिए। मदीना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी माशाअल्लाह। अब आप दूसरी तरफ सलाम फेरिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ऐ भाइयों नमाज। दीदार हक दिखाएगी ऐ भाइयों नमाज।